Hi everyone. So it is the next video of chapter number 20, whose forests. In the first video I explained the half part of this chapter, and in this video I'll explain the rest of the part of this chapter. So Surimani Girl Star, he goes to Bishanpur and complete their study. After college she open a Torong Center to save the forest. And here I'll explain the another rest of the part of this chapter. A forest have everything for us. We can't live away from the forest even for a day. Government has started many projects in the name of development, dams and factory and being built. Forests which are our and being taken away from us because of these projects. We need to think where the forest people will go and what happened to their livelihood. Where will the lakhs of animals living in the forest go if there are no forests and we dig out our land for minerals like aluminium? What will be left? Only polluted water and mines and meals of barren land. Actually, this is a letter which is written by a girl. Her name is Sikhya. See here, Sikhya, a class 10th girl in Odisha, wrote a letter to the chief minister, and it is the part of the letter. उसने एक लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर के लिए. उन्होंने ये कहा कि वो भी एक आदिवासी है, कि उड़ीसा में रहती हैं, वो भी एक आदिवासी है, वो बिना जंगलों के नहीं रह पाते, वो जंगल उनके लिए सब कुछ है. सो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट निकालती है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, डैम्स बनाना, फैक्ट्री बनाना, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वो फॉरेस्ट को कट कर रही हैं. तो अगर ये फॉरेस्ट कट जाएंगे तो वो रहेंगे कहाँ? कौन? आदिवासी लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कहाँ रहेंगे? वो कैसे कमा कर खाएंगे? उनकी ज़िंदगी कैसे चलेगी? इवन बहुत सारे जो जानवर होते, जो एनिमल्स होते फॉरेस्ट में रहते, वो कहाँ जाएंगे? और अगर जो फॉरेस्ट है उनको कट किया जाता है, वहाँ से वुड ले लिया जाता है, मिनरल्स निकालने के लिए लैंड को, ज़मीन को खोदा जाता है, तो बचेगा क्या? सिर्फ पॉल्यूटेड एयर, वाटर और दूर दूर तक बस बंजर ज़मीन. What is the meaning of बंजर in English? Okay, what use यहाँ पे एक वर्ड है. Here you have to find a word that is meaning of बंजर. Okay, बंजर means वो ज़मीन होती है जहाँ पे कुछ नहीं उगता, पूरे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ पे प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाते. सो ये जो ब्लॉक है येलो पर्पल कलर का, इसके अंदर एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बंजर. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं ना, कि सब फॉरेस्ट काट रहे हैं और वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बन रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के अगेंस्ट सूर्यमणि दीदी लड़ती हैं. Lottery for farming in Mizoram. You read about the forest of Jharkhand in Surimani's story. Now read about the forest on the hills of Mizoram. See how people live there and how farming is done. एक्चुअल में मिज़ोरम जो होता है वो हिली एरिया है, वहाँ पे हिल्स, पहाड़ ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे फार्मिंग करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. डिंग डिंग डिंग. एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग, Lamte are Dingy and Digima picked their bags and hurried home. On the way, they stopped to drink water from a stream in the cup made by bamboo, which was kept there. Today, not only the children, even Shaima sir was in hurry to get back. Today, there would be a special meeting of the village council, means Panchayat. At the meeting, there would be a lottery to decide
Which family will get how much land for farming? The land belongs to the whole village, not to separate people. So they take the turn to do farming on different parts of land. एक्चुअली मिज़ोरम में ना लॉटरी फार्मिंग की जाती है, मतलब एक लॉटरी निकाली जाती है जिससे ये डिसाइड होता है कि कौन सी फैमिली को कितनी ज़मीन मिलेगी खेती करने के लिए, और वो ज़मीन जो होती है ना वो पूरे गांव को मिलती है, अलग अलग पर्सन्स को नहीं मिलती. सो लामते आ डिंगी और डिंगमा जो स्कूल में पढ़ते हैं वो बहुत हड़बड़ी में थे. इवन उनके जो सर थे साइमा सर वो भी बहुत जल्दी में थे, क्योंकि आज एक स्पेशल मीटिंग थी उनके गांव में जिसमें ये तय होने वाला था लॉटरी निकालकर कि फार्मिंग के लिए कितना लैंड किसको मिलेगा. तो वो लॉटरी जो निकलती है उसके अकॉर्डिंग ना वो टर्न बाय टर्न फार्मिंग करते हैं डिफरेंट पार्ट में. अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल. One chit was taken out. Shyama sir family got the first chance. He said, I am happy that my family get to choose first, but this year we cannot take more land. Last year I had taken more and was not able to farm it well. After my sister Jhiri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. तो उनके जो सायमा सर थे उनको लॉटरी में सबसे पहले उनका नाम आया, और वो लॉटरी जो थी बहुत ही ब्यूटीफुल बांस के पॉट में रखी जाती थी और फिर उसको ज़ोर से हिलाया जाता था, फिर चिट निकलती थी. सो शायमा सर की फैमिली को पहला चांस मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा ज़मीन नहीं लेंगे क्योंकि लास्ट ईयर हमने ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन ले ली थी. बट उनकी जो सिस्टर थी उनकी मैरिज हो गई थी, उनकी सिस्टर जो थी झीरी उसकी मैरिज हो चुकी थी और वो दूसरे गाँव चली गई थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था अकेले इतने बड़े लैंड में फार्मिंग करना. सो सायमा सर सेड आस्क्ड फॉर 3 टीन ऑफ लैंड. लिटिल माथनी आस्क्ड व्हाट इज 3 टीन ऑफ लैंड. Chemoy explained the land on which we grow 1 teen of seed is called 1 teen of land. One by one the village families got their piece of land for farming. सो सायमा सर ने कहा उनको 3 टीन चाहिए. सो 3 टीन का मतलब क्या होता है पूछा उन्होंने, तो चैमुई ने बताया कि जहाँ पे 1 टीन सीड को उगाया जाता है, द लैंड विच वी ग्रो 1 टीन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टीन ऑफ लैंड. 1 टीन जो सीड्स का सीड जिसमें रखते हैं ना टीन में, वो जितना भी वहाँ पे उग सकता है या उगा सकते हैं, सो उसको कहा जाता है टीन ऑफ लैंड. तो उनको वो चाहिए, फिर 1 by 1 पूरी फैमिलीज़ को वहाँ पे मिलता गया. नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज़ झूम फार्मिंग. सो झूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आफ्टर कटिंग 1 crop द लैंड इज़ लेफ्ट अस. इट इज़ फॉर सम ईयर्स. Nothing is grown there. The bamboo or weeds which grown on that land are not pulled out. They are cut and burned. The ash make the land fertile. While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other part of forest. When the land is ready for farming, it is light and dug up, not plucked. Seeds are dropped on it. In one part, different types of crops like maize, vegetable, chilies and rice can be grown. झूम फार्मिंग जो होती है ना बहुत इंटरेस्टिंग होती है. यहाँ पे जब फार्मिंग कर ली जाती है और कटाई हो जाती है हार्वेस्टिंग के बाद, उस जगह को बहुत सालों के लिए छोड़ दिया जाता है. वहाँ पे कुछ नहीं उगाया जाता. वहाँ पे जो वीड्स उगते हैं, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उनको वीड कहते हैं, जिसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं, जो बिना बोए ही उग जाते हैं. सो वो वीड्स और बैम्बू जो अपने आप उग जाते हैं ना, उनको उस फील्ड से साफ़ नहीं किया जाता. लेकिन जब फिर से वहाँ खेती की जाती है ना, तब उसको उखाड़ा नहीं जाता, सिर्फ जला दिया जाता है. सो जलाने से जो मिनरल्स उस पेड़ के होते हैं, बैम्बू के या वीड्स के होते हैं, वो वापस सॉइल में चले जाते हैं. और छोटे छोटे फिर जब फार्मिंग शुरू किया जाता है ना, तो सिर्फ छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं. और जब वीड को जलाया जाता है तो बहुत केयरफुली जलाया जाता है ताकि आसपास की ज़मीन या और जंगल में आग ज़्यादा
ना फैले। सो सीड्स को वहाँ पे डाल दिया जाता है और डिफरेंट टाइप के क्रॉप जैसे कि मैज, वेजिटेबल और चिलीज़ को वहाँ पे उगाया जाता है। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट आर ऑल्सो नॉट प्लग आउट, दे आर जस्ट कट so that they get mixed with the soil. This also help in the making the soil fertile. If some family is not able to do farming on time, help them and others help them and are given food. वीड और दूसरे भी प्लांट होते हैं ना, उनको वहाँ से निकाला नहीं जाता, उनको सिर्फ कट करके वहीं पे छोड़ दिया जाता है और बाद में जला दिया जाता है। उससे क्या होता है, जितने भी मिनरल्स और सॉइल को इम्पोर्टेंट जितने भी मिनरल्स होते हैं जो वो प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है, वो वापस वहाँ से उसको मिल जाता है। और कोई फैमिली अगर वहाँ पे फार्मिंग करने लायक नहीं रहती या किसी भी वजह से वो फार्मिंग टाइम पे नहीं कर पाते, तो दूसरी फैमिली उनकी हेल्प करती है और कभी कभी उनको खाना भी देती है। द मेन क्रॉप हियर इज राइस, वेयर मिजोरम। Okay, after it is cut, it is difficult to take it home. There are no road, only hill path. People have to carry the crop on their back there. This takes many weeks. So मिज़ोरम में एक्चुअली राइस इम्पॉर्टेंट है, बट आजकल वहाँ पे मेज़ उगाया जाता है। मेज़ की परसेंटेज ना ज़्यादा है। सो वहाँ पे राइस है और इनको जब हार्वेस्ट किया जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है वापस घर ले जाने में, क्योंकि वहाँ पे कोई रोड नहीं होता, बस सब हिली एरिया है। सो पीपुल सिर्फ अपने कंधे पर रखकर ही सारे चीज़ों को अपनी पीठ पे लाद के ही लेकर जाते हैं, तो इस चीज़ में बहुत हफ्ते लग जाते हैं। व्हेन द वर्क इज़ ओवर, द एंटायर विलेज सेलिब्रेट। पीपुल गेट टुगेदर टू कुक एंड ईट, सिंग एंड डांस। दे डू देयर स्पेशल चिराओ डांस. In this dance, people sit in pair in front of each other, holding bamboo sticks on the ground. As the drum beats, the bamboo are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo stick and dance to the beat. So जब ये सारा चीज़ हो जाता है ना, तो वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं, साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। और वहाँ का एक जो डिफरेंट टाइप्स का डांस होता है उसको कहते हैं चिराओ डांस। इस डांस में लोग बैठ जाते हैं और बैम्बू के स्टिक को पकड़ते हैं और बैम्बू के स्टिक को आगे पीछे करते हुए वो उसमें डांस करते हैं, और जो लोग डांस करते हैं वो उस बैम्बू स्टिक के अंदर और बाहर जंप करते रहते हैं। About 3/4 people in the Mizoram are linked to the forest. Life is difficult, but almost all children go to the school. You can see some of them here playfully blowing their leaf whistle. You too have made many such whistles, haven't you? तो मिज़ोरम्स के जो 3/4 पीपल है, 3/4 पीपल्स जो है वो फॉरेस्ट से ही बिलोंग करते हैं, वो फॉरेस्ट से ही जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है बच्चों को स्कूल जाने में, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। वो बहुत मस्ती करते हैं, वो बहुत खेलते हैं और वो उन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं और उनकी लीव से वो डिफरेंट टाइप्स के विसल भी बनाते हैं। सो स्टूडेंट, हियर the chapter number 20 is completed. I hope you understood all the chapter, and if you have any type of doubt, you have to ask the question in the comment section. When you watch this video, please like this video and subscribe my channel for new video. So thanks for watching. Have a good day.